गुड आफ्टरनून। हमारे फाइनल के बच्चे भी फाउंडेशन अटेंड कर रहे हैं, है ना? ऐसी क्या नौबत आ गई तुम पर? तो फाइनल में जाके रियलाइज हुआ क्या कि बेसिक कंसेप्ट क्लियर नहीं अब तक के, इसलिए अटेंड करना पड़ रहा है वापस से। चलो चलो काम करो करके। हाँ, वैसे भी सैटरडे संडे छुट्टी रहती है तुम लोग को। ओके, तो कल हमने बात की थी अबाउट आज क्या नया सीखने मिलेगा। बेटा ये घर पे आके पता चलेगा, राइट? हाँ, सो लेट्स टॉक अबाउट द फर्दर कंसेप्ट्स। कल हमने बात की इनकम्स और एक्सपेंसेस के बारे में। टुडे वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द असेट्स एंड लाइबिलिटीज। व्हेन वी टॉक अबाउट द असेट्स, as I explained you on the other in yesterday's lecture itself, that anything that you are owning or anything which is receivable by the business will be called as your asset. अब जहां तक assets है, so we have to divide that assets into three categories. As you would remember, we call that as fixed assets. In fact, in the current terminologies, it is called as non-current assets. If you refer through Accounting Standard 10, Property, Plant and Equipment, in that property, plant and equipment, it is not called as the fixed asset, it is called as the non-current asset. As per the new format of the balance sheet, what I was talking about yesterday, if you remember, in that new format of the balance sheet also, we do not use the terminology nowadays as the fixed asset, but we use as what? Non-current assets. Then the next one comes is the investments. And the third one in this category falls is the current assets. In fact, we can add one more into this, and that is called as fictitious assets. Fictitious assets. So these are the various aspects of the assets. These are the various parts of the assets. जैसा मैं कल आपको कह रहा था, जब मैंने स्टार्ट किया था व्हाट डू वी मीन बाय एसेट लायबिलिटी, एट दैट टाइम जो इनिशियल रिस्पॉन्स आया था दैट एसेट मीन्स ओनली फिक्स्ड एसेट, व्हेयरएज दैट्स नॉट द फैक्ट। एसेट का मतलब सिर्फ फिक्स्ड एसेट्स नहीं होते। Assets do include the fixed assets, assets do include the current assets, assets do include the investments as well. So anything and everything that is owned by the business or anything and everything against which the money is receivable by the business, those all are called as the assets of the business. ये हमने कल डिस्कस कर लिया था, right? अब what is the non-current asset or what is a fixed asset? What would be categorized, what would be called as the fixed asset or a non-current asset? Just observe it. When we are discussing about the non-current assets or the fixed assets, यहां जब हमने इन assets को खरीदा था, when we acquired it, when we constructed it, when we prepared it, when we produced it, these assets were meant to be used within the business. ये जब हमने परचेज की थी उस समय पे हमारा इंटेंट क्या था? To use within the business in the process of manufacturing, in the process of trading or in the process of providing the services. जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर मैं कोई मैन्युफैक्चरर हूं और अगर मैं कोई मशीन खरीद रहा हूं, what is the purpose of purchasing that machine? Why will I purchase that machine? To produce goods out of that or not? To manufacture goods out of that or not? Which means what? I am purchasing the asset with what intent? To use in my own business, and that usage is expected to be a long-term use. That usage is expected to be for a period more than 1 year. That is not a short-term use. That use will be the longer-term use into my business. And number 3, I am not intending to resell it.
जब मैं खरीद रहा हूं उस समय पे मुझे उसे सेल करने का इंटेंट है क्या? आई एम परचेसिंग इट विथ व्हाट इंटेंट? टू यूज इट इन माई बिजनेस ओवर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम, एंड दैट्स वाई सच काइंड ऑफ थिंग्स इज व्हाट वी कॉल एज द फिक्स्ड assets or the non-current assets. अब अगर मैंने कहा फिक्स्ड asset does not mean it is fixed at a place. An asset which is used for the long-term purpose, an asset which is not meant for resale, an asset which is meant for the purpose of using it in the production or providing the services, an asset which will be there with the business for a longer period of time. Such kind of asset will be calling as what? The fixed assets or the non-current assets. अभी भी ICAI ने सारे के सारे टर्मिनोलॉजीज आपके ICAI मॉड्यूल में बदले नहीं है, तो हाल फिलहाल हम इसके लिए नॉन करंट असेट ऐसा ही, सुरेश, नॉन करंट असेट ऐसा ही वर्ड यूज करेंगे. हाँ, नॉन करंट असेट और फिक्स्ड असेट एज द केस में भी क्वेश्चन में जिस तरह से दिया होगा हम उसी तरह से उसको प्रेजेंट करेंगे. इज द पॉइंट राइट? नाउ द नेक्स्ट वन, दैट इज इन्वेस्टमेंट्स. व्हाट इज एन इन्वेस्टमेंट? व्हेन यू हैव परचेज समथिंग in the form of securities of some organization, in the form of an asset which is for a longer period of time but with the intent to resell it. आपका primary intent क्या है? To resell it after a particular period of time, and I am expecting to get the returns on that. I expect what? Get the returns on that in the form of either interest, dividend, or in the appreciation of its value. If this is the criteria that you are fulfilling, what are the criteria? Number one, long term. Number two, intent of reselling. Number three, you are expecting regular returns or appreciation in its value. अब मान लो हमारे प्यारे जीबी सर, वो अगर कोई प्लॉट ऑफ लैंड खरीद के आते हैं, why would he purchase the plot of land? He is basically a tutor. His primary business is to carry out the teaching activity only or not. अब वो plot of land जब खरीद रहे हैं तो what would be the intent behind that? After a particular period of time, he is intending to sell it back or not, and therefore for him that particular plot of land will not be called as fixed asset, but it will be called as what? Investments. But if he has purchased a classroom in which the teaching process will start, in that case that classroom for him will become what? A fixed asset. Did you understand the difference between when I call something as fixed asset and when I call something as investment? If I am purchasing DLF जैसी कंपनी, छोटी सी कंपनी है DLF, वो पता है आप लोगों को, ये कंस्ट्रक्शन के काम करते हैं ना. अगर आप नोएडा से दिल्ली तक चले जाए, देयर इज अ रोड कॉल्ड एज यमुना एक्सप्रेस वे. छोटा सा रोड है, 6 लाइन एक साइड, 6 लाइन दूसरे साइड. So literally it's that kind of humongous road. On this road when you go, whether you are sighting yourselves on the left or the right, you'll be finding the constructions being done by only one company, and that is DLF. That level of company it is. अभी recently उन्होंने कुछ एक स्कीम बनाई थी, बिल्डिंग बनाई थी दिल्ली में, with the selling price of only 70 crore per flat. And it got booked in 3 days with 80 flats in that. 3 days. 5,600 करोड़ रुपए का टर्नओवर किया उन्होंने 3 दिन में. ऑफ कोर्स 70 करोड़ रुपए का फ्लैट, 80 फ्लैट, 5,600 करोड़ रुपए, राइट? तो दैट काइंड ऑफ कंपनी, छोटी सी कंपनी. देखो भाई, अपनी सोच बड़ी होनी चाहिए, बाकी सारी चीजें अपने आप छोटी लगती हैं फिर, राइट? तो डीएलएफ जैसी कंपनी ने अगर कोई प्लॉट ऑफ लैंड खरीदा, व्हाई वुड दे जनरली बाय द प्लॉट ऑफ लैंड?
for the purpose of doing the construction on that and then reselling the same or not. So for them, such plot of land will neither be a non-current asset nor investments. Why? उनका रोजमर्रा का काम है ना, प्लॉट खरीदना और प्लॉट पे कंस्ट्रक्शन करके बेचना. So as it is their day-to-day activities, it comes under the revenue transactions or not. They'll keep buying the plots, they'll keep selling the plots, they'll keep buying the plots, they'll keep constructing the things on that and then selling it or not. और अगर ये उनकी रोजमर्रा की जिंदगी है तो उनके लिए वो जो प्लॉट ऑफ लैंड है दैट विल नॉट बी कॉल्ड एज अ फिक्स्ड एसेट और इन्वेस्टमेंट. पर सेम डीएलएफ, इन्होंने अगर कोई प्लॉट ऑफ लैंड खरीदा टू कंस्ट्रक्ट द ऑफिस ऑफ देयर ओन, उनको उस प्लॉट ऑफ लैंड पे खुद का ही ऑफिस कंस्ट्रक्ट करना है या फिर उन्होंने खुद का ऑफिस कंस्ट्रक्ट कर लिया है. उनका नोएडा एनसीआर में दे हैव गॉट वन ऑफ द ऑफिस है, कुछ एक 30-35 एकड़ पे एक उनका छोटा सा ऑफिस है, राइट, 30-35 एकर्स. देयर ग्राउंड फ्लोर इज ऑल रिसेप्शन, अप्रोक्सीमेटली 3000 स्क्वायर फीट, 30,000 नहीं, सॉरी 30,000 स्क्वायर फीट इज ओनली रिसेप्शन. मतलब लोग आके वहां पे चिल करते हैं, रिसेप्शन, इतना बड़ा उनका रिसेप्शन है. तो इस तरह की कंपनी ने अगर ये बिल्डिंग बनाई, दैट बिल्डिंग इज फॉर देयर ओन यूज और नॉट? इज इट फॉर द पर्पज ऑफ रीसेल? इज इट फॉर द पर्पज ऑफ अप्रिसिएशन द वैल्यू? इट इज बेसिकली फॉर यूज विद इन द बिजनेस एंड टू प्रोवाइड द सर्विसेज और नॉट? वो उनका कॉर्पोरेट ऑफिस है, वहां पे लोगों को बिठाते हैं, वहां से वो लोगों को सर्विसेज प्रोवाइड करवाते हैं. मतलब दैट इज बीन यूज्ड इन द प्रोसेस ऑफ देयर बिजनेस एक्टिविटी ओनली और नॉट? एंड दैट्स व्हाई दैट बिल्डिंग फॉर देम विल बिकम व्हाट? The fixed asset or non-current asset. Tata Motors, another small company in our country, right? ऐसी छोटी छोटी कंपनीज हमारे देश में बहुत है. रिलायंस, टाटा मोटर्स, टीसीएस, इन्फोसिस, विप्रो, छोटी छोटी कंपनीज है हमारे पास. तो इसलिए तो टेस्ला जैसी कंपनीज डरती है ना हमारे पास आने के लिए. यहाँ जाएंगे, इनके साथ कैसे कॉम्पीट करेंगे? तो कहानी ये है, इफ टाटा मोटर्स प्रोड्यूसेस कार्स, they sell the car or not? If I, Manish Tardeja, purchase a car from Tata Motors, for me that will be considered as my fixed asset or non-current asset. Why? I'm going to use it for my personal purpose or for my office purpose only or not? If I'm using it for my business, then in that case for my business it will become non-current asset or fixed asset or not. Are you able to understand this? Whereas if I am into the business of tour operation, and if I purchase 20 cars and I'm running those cars for the purpose of tour operation, what that assets will be in that case? I'm a tour operator and if I have bought 20 cars and I'm running it in the tour operation business, what will that be for me? Yes? Current assets, fixed assets, investments, fictitious assets. Those will still remain the fixed assets or non-current assets. Why? Number one, purchase for long term. Number two, is it for resale? Number three, is it for providing the services within the business? Tour operation business है, उन्हीं services को provide करने के लिए वो cars खरीदी है नहीं. That's why those cars will become what? Fixed asset. पर अगर मैं ऑटोमोबाइल डीलर हूं तो मैंने अगर कार्स खरीदी, what is the intent of purchasing the cars? To resell it in a short period of time. इन्वेस्टमेंट के केस में क्या था? लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम. यहां शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम. एज आई एम परचेसिंग इट फॉर रीसेल पर्पज ओनली, देन इन दैट केस इट विल बिकम माय करंट असेट्स. तो टाटा मोटर्स ने जितनी गाड़ियां बना के रखी है उनके लिए वो क्या होगा? करंट असेट, बिकॉज दे आर प्रोड्यूसिंग इट फॉर द पर्पज ऑफ रीसेलिंग इट. टाटा मोटर्स का कोई डीलर है, उसने अगर टाटा मोटर्स से गाड़ियां खरीदी और वो गाड़ियां बेचने वाला है, तो फॉर दैट डीलर ऑल्सो इट विल बिकम करंट असेट्स. बट इफ दैट पर्टिकुलर कस्टमर इज बाइंग दैट कार फॉर कस्टमर, इट बिकम्स फिक्स्ड असेट. फॉर द टूर ऑपरेटर ऑल्सो इट विल बिकम फिक्स्ड असेट्स. कार्स काइंड ऑफ असेट्स कैन नेवर बी इन्वेस्टमेंट्स अनलेस एंड अंटिल इट्स अ काइंड ऑफ विंटेज. आप कोई विंटेज गाड़ी आके खड़ी कर दो, उसकी वैल्यू घटती नहीं है.
उसकी वैल्यू बढ़ती है. सो इन दैट केस दैट विंटेज कार विल बी कॉल्ड एज इन्वेस्टमेंट. आर एबल टू अंडरस्टैंड दिस? नेक्स्ट पॉइंट, द करंट assets. Current assets basically include such all assets which are resellable in a short period of time, generally less than 1 year. I said what? Which are resellable within a short period of time, generally less than 1 year. मैं अगर कोई पर्टिकुलर प्रॉपर्टी खरीद के आया, कोई पर्टिकुलर गुड्स खरीद के आया और वो 2 साल तक के नहीं बिके, इसका मतलब ये नहीं कि वो फिक्स्ड एसेट हो गए. मैंने जब खरीदे थे, मेरा इंटेंट क्या था? टू रीसेल इट. Am I purchasing it for use in my business? No. I want to resell it. But that too, I want to resell in the short period of time. पर मेरे पास कस्टमर ही नहीं आया, तो प्रोडक्ट बचा हुआ पड़ा है. In that case, the product can remain with me for a period of longer than 1 year also or not. Does not mean that current asset will get converted into fixed asset. क्यों? Intent has to be checked. For what purpose the particular product or the particular item is been purchased have to be checked. अगर कार डीलर्स का आप एग्जांपल ले वापस से, तो कार डीलर्स के केस में ऐसा होता है. आपको पता होगा, तो अभी मार्च महीना चल रहा है. इन ड्यूरिंग दिस पीरियड इफ यू गो टू अ कार डीलर एंड यू आस्क फॉर द कार, दे विल गिव यू 2 वैरायटी ऑफ कार्स. वन विच इज लेटेस्ट प्रोड्यूस्ड एंड 2 विच इज बिफोर डिसंबर वाला प्रोड्यूस. और जो बिफोर डिसंबर वाला प्रोड्यूस है, वो अगर आप उनसे खरीदोगे तो दे विल गिव यू द डिस्काउंट ऑफ 2 लाख 3 लाख रुपीज फ्लैट ऑन अ कार वैल्यू ऑफ 9 लाख एंड 8 लाख रुपीज. 8 लाख की गाड़ी पे 2 लाख रुपए का डिस्काउंट देने के लिए तैयार हो जाते हैं लोग. 25% डिस्काउंट, इट्स नॉट ए जोक. कार पे 25% डिस्काउंट मिलना, इट्स नॉट सरकाजम. पर क्यों मिल रहा है ये? बिकॉज इट इज एन ओल्ड स्टॉक. वो गाड़ी उनकी उसी पीरियड में नहीं बिकी एंड दैट्स व्हाई दे आर रेडी टू सेल इट एट द लोअर प्राइस ऑल्सो और नॉट. आप चले जाते हो वो फैशन फैक्ट्री है ना, कोई रिलायंस का दुकान, रिलायंस का दुकान मालूम है? फैशन फैक्ट्री. वो पहले ब्रांड फैक्ट्री हुआ करता था, अब वो रिलायंस का फैशन फैक्ट्री हो गया. वहां पे कभी भी जाओ आप, अप टू 70% डिस्काउंट, अप टू 50% डिस्काउंट हमेशा चलते रहता है. इज इट द केस जो कंपनी ने वो पर्टिकुलर प्रोडक्ट खरीदा है, इट इज द लेटेस्ट प्रोडक्ट? कम से कम 4 से 5 साल पुराना प्रोडक्ट होता है, कम से कम, बेयर मिनिमम. तो वहां जाके लोग जाके ब्रांड खरीद के आए, स्केचर्स के शूज जो 4 साल पहले बने थे और अब बिक रहे. यू गो एंड चेक आउट, यू विल नेवर बी एबल टू फाइंड आउट द मैन्युफैक्चरिंग डेट ऑन दैट. वो जो प्रोडक्ट्स होते हैं उनके पास, उस पर आपको कोई मैन्युफैक्चरिंग डेट नहीं मिलेगी. दैट्स व्हाई दे आर एबल टू सेल इट जस्ट लाइक दैट ना. वो कोई प्रोवोक का शॉप है, प्रोवोक तो खैर अभी बंद हो गया. लेट्स से ज़ोडिएक का कोई शॉप है. अब ज़ोडिएक के पास में शर्ट्स पड़ी हैं, शर्ट्स उसने बनाई, शर्ट्स प्रोड्यूस की, शर्ट्स प्रोड्यूस करने के बाद में सेल करना चालू की फ्रॉम इट्स रिटेल आउटलेट. बहुत सारे रिटेल आउटलेट है ज़ोडिएक के. अब वो ज़ोडिएक ने इतने सारे रिटेल आउटलेट्स पे शर्ट्स बेच दिए, फिर भी आउटडेट हो गया. कोई प्रोडक्ट नया आ गया, उसकी जगह वो पुराना प्रोडक्ट अब नहीं चल रहा है. So these outdated product, what do they do? They all go to the factory back. तो सारे के सारे बैंगलोर वापस जाते हैं और वहां पे वो सारे स्टैक किए जाते हैं एक साथ. और फिर ये फैशन फैक्ट्री जैसा बंदा, एक कोई बंदा आता है, वो बंदा बोलता है कितने शर्ट्स हैं, तो ये बंदा बोलता है करीब करीब 5,000 शर्ट्स हैं, 10,000 शर्ट्स हैं, 20,000 शर्ट्स हैं, जो भी नंबर होगा. और फिर वो फैशन फैक्ट्री वाला बंदा कोटेशन लगाता है कि पर शर्ट आई पे 500 रुपीज. एमआरपी कितना? किसी का 4,000, किसी का 3,000, किसी का 6,000, किसी का 2. ज़ोडिएक है, ज़ोडिएक का बेयर मिनिमम शर्ट जो आता है वो 3,000 रुपये का आता है. और इसने कितना कोटेशन लगाया? 500 रुपये प्रति शर्ट. अब वो 500 रुपये में प्रति शर्ट लेके जाएगा, तो तुम्हारे पास फैशन फैक्ट्री में क्यों नहीं 70% डिस्काउंट देगा? 3,000 रुपये की शर्ट पे अगर उसने 70% डिस्काउंट भी दे दिया तुमको, ज़ोडिएक की शर्ट, 3,000 रुपये पे 70% डिस्काउंट दे दिया, मतलब तुमको 2,100 रुपये का डिस्काउंट मिला, करेक्ट, एमआरपी पे. You bought the product only at 900 rupees. Does not mean company is doing any kind of losses. वो मोटा भाई बैठा है उधर, मोटा भाई अगर आप छींकता भी है ना, उसमें से भी प्रॉफिट कमाता है. छींकता है ऐसे 2-4 कॉइन गिरते हैं, दैट काइंड ऑफ थिंग. तो ऑफ कोर्स दैट पर्सन मेक्स मनी एवरी सेकेंड. ये जो सराउंडिंग्स के इम्पैक्ट होते हैं ना, वही दिक्कत है और कुछ नहीं है. किसकी तबीयत खराब हुई थी कल? तेरी तबीयत खराब हुई थी. गांव बदल गया ना, माँ का प्यार मिल नहीं रहा है,
सर याद मत दिलाओ सर प्लीज। इनिशियल डेज में जो ये होम सिकनेस होती है ना, इसकी कहानी अलग है। कितने लोग हॉस्टलाइट है यहाँ पे? सारे के सारे हाथ ऊपर करो। ऑल हॉस्टलाइट्स। लैब भाई सब 50% क्लास हॉस्टलाइट है। इतना कहाँ बाहर से यहाँ तक क्या आ गए तुम लोग? और कुछ नहीं, पूना के फैसिनेशन में आए, मेरे को मालूम है। सीए तो बहाना था, पूना जो जाना था, दैट काइंड ऑफ थिंग। तो एनी विच वेज, ये जो होम सिकनेस वाली कहानी है ना, और ये कब तक होती है पता है? या सेटल होने तक। पहले 5 दिन 6 दिन 10 दिन तक की बड़ी दिक्कत होती है, यार कहाँ आ गए हम लोग, कहाँ वो घर का खाना मिला करता था, यहाँ कपड़े खुद धोने पड़ रहे हैं। यार उसका तो नंबर भी नहीं लगा अब तक के, है ना? अभी अभी आयो तो अभी तक कपड़े का नंबर नहीं लगा ना, नहीं ना? और वो जो आती है ना सिचुएशन, मेरे साथ हुई थी एक बार। मतलब कपड़े तो कई बार धोए मैंने, पर एक बार सिचुएशन है, रेनी सीजन, मैंने कपड़े भिगो के रखे बाहर, एकदम खुला हुआ आसमान था। मैं कहा कोई टेंशन नहीं, आज कपड़े धो देंगे अपन, संडे का दिन था। तो कपड़े भिगोए मैंने और उतने में बारिश चालू हो गई। मैं कोई नहीं, शाम तक के खुल जाएगी, शाम को अपन धो के फिर सुखा देंगे। शाम हुई, हम लोग बाहर चले गए खाना वाना खाने, वापस आए, मैं भूल गया। मेरे को 7वें दिन पे लैंडलॉर्ड ने याद दिलाया कि तुम्हारे बाथरूम से इतनी स्मेल क्यों आ रही है। मैं क्या बाथरूम है? तो कहते नहीं नहीं कुछ तो गड़बड़ है। तो चेक किया, मुझे खुद का पता चला यार मैंने कपड़े भिगोए थे। मैं लिटरली उसके पहले मैं बैंगलोर ऑडिट के लिए गया था, और वहां से ना अत्तर लेके आया था, अत्तर। बैंगलोर ऑडिट पे गया था, मतलब एकदम राजाशाही ऑडिट वगैरह चाहिए। तो वापस आते टाइम जब अत्तर लेके आया था ना, तो वो कपड़े मैंने जो पानी में खंगाल के उसके ऊपर जो अत्तर डाला है ना, मतलब बस भगवान भला करे मैं खुद बेहोश नहीं हुआ था। तो ऐसे सिनेरियोज भी होते हैं, और मजा भी अलग है पता है। ये आज जैसे मैं तुमको कितनी खुशी से स्टोरी सुना रहा हूँ। संडेज आते थे हमारे, पहला संडे जो होता था ना महीने का, वो एकदम लैविश होता था। लैविश मतलब दिन में तो फीस्ट होती थी हॉस्टल में, मेस पे। तो शाम के टाइम ना मेस बंद होती थी उस टाइम पे, शाम का खाना नहीं देते थे, दिन में फीस्ट रात में फास्ट। तो शाम के टाइम के लिए पहला हफ्ता, अगर हफ्ते महीने का पहला हफ्ता है, पहला संडे है, तो इट वुड बी लाइक ढूंढो यार कोई अच्छा होटल, बढ़िया जाएंगे, चिकन विकन खाएंगे आराम से, एकदम कोई टेंशन वाली बात नहीं है। और एकदम बटर चिकन खा रहे हैं, और फिर क्या क्या नहीं खा रहे, विद ड्यू रिस्पेक्ट टू ऑल द घास फूस वालास। सो बहुत सारे होंगे यहाँ पे घास फूस वाले। कितने लोग? सुनने में भी चिढ़ लगती है इनको। हाँ, जैसे कोई यहाँ पे बंदा ऐसे ऐसे खा रहा है। हाँ, तुम भी खाओगे कुछ दिनों में, रुको तुम, पनीर समझ के। so, अरे पनीर समझ के खा लो यार, टेस्ट तो वही आता है, सिर्फ थोड़ा च्यू ज्यादा कर रहा है। सो तो लिटरली पहला संडे और वुड ऑलवेज बी बेटर। और फिर जैसे आखिरी आखिरी संडे आता था ना, मंथ एंड मतलब कड़की उधारी की जिंदगी, राइट? और उस समय पे सीन बनता था, दिन में फीस, सच में रात में फास्ट। उस टाइम हम लोग स्ट्रेटेजी करते थे पता है। पैसे तो आते नहीं थे, महीने का 2,000 रुपये फिक्स आता था, उससे ज्यादा एक ढीला नहीं आएगा। 700 रुपये मेस के, 700 रुपये कॉट के, और 600 रुपये चाय नाश्ता पिक्चर वगैरह सब कुछ। पिक्चर देखना कंपलसरी होता था, महीने में 4-5 पिक्चर तो देखनी ही चाहिए, दैट काइंड ऑफ थिंग। सस्ता था, सस्ता था। उस टाइम पे मूवी देखने जाते थे, 20-25 रुपये खर्च आता था। 25 रुपये में टिकट आती थी, 5-7 रुपये का पॉपकॉर्न आ जाता था। सीरियसली 5 रुपये में पॉपकॉर्न मिलता था उस टाइम पे। आजकल मैं मूवी देखने जाता हूँ, मेरे को पहले बजट मिलाना पड़ता है यार, 6,000 रुपये चाहिए, कैसे जाऊँ? दैट काइंड ऑफ थिंग। वहाँ का पॉपकॉर्न 1,000 रुपये आता है यार आजकल। सर डू यू वांट लार्ज टब, 970 रुपये का, दैट काइंड ऑफ थिंग। अब सारे खाएंगे ना मिलके। तो एनी विच वेज, ये जो हॉस्टल वाली कहानी है ना, बाद में सुनाने में इतना मजा आता है, सीरियस मजा आता है। और सबसे बड़ा फायदा है, हॉस्टल वाले कितने यहाँ पे, पीजी नहीं, हॉस्टल वाले कितने जो हॉस्टल्स पे रहते हैं, इनकी लाइफ में एक ट्विस्ट क्या होता है पता है? हॉस्टल का एक बंदा बीमार हो जाए, सारा हॉस्टल संभालने आता है, सारा हॉस्टल मां की जगह ले लेता है। तो हर 10 मिनट में कोई ना कोई बंदा आएगा, ठीक है, ठीक लग रहा है तेरे को? और 2 दिन बाद जब बंदा सच में ठीक हो जाए ना, उसी की मारते हैं फिर, और वो बीमार। हाँ।
So, any which ways, hostel life is one of the fantastic life that you are living. I'm seriously saying this. This is one of the best learning mode that you are getting in your life. So, do not lose it out just out of the homesickness. कि नहीं यार मेरे को खाना ठीक नहीं मिल रहा है, हो जाता है, सब मैनेज हो जाता है. मतलब हॉस्टल में, सॉरी मेस में जाने के बाद में तो हम लोग खाना खाने के बाद पूछते थे आज क्या बनाया था. रस्सा तो सेम ही है ना, अंदर रोटी डालेंगे तो समझ में आएगा क्या भाजी है, राइट. इट वुड ऑलवेज बी लाइक दैट. यार आजकल की मेस बहुत ज्यादा इंप्रूव हो गई है क्योंकि आजकल कंपटीशन है, आजकल सीरियस कंपटीशन है. मतलब एक मेस पसंद है बांध कल से दूसरा, दैट काइंड ऑफ थिंग. आजकल थाली प्लेट वाला सिस्टम हो गया. पहले ऐसा नहीं होता. मेस 700 रुपये एक बार दे दिया कि अब महीना भर अटके रहो बेटा और कहीं नहीं जा सकते. दैट वुड बी द काइंड ऑफ थिंग. खैर मजे करते रहो. डू नॉट हैव द काइंड ऑफ फीलिंग दैट यू आर एट अ प्लेस बियॉन्ड योर प्लेस. कुछ दिन लगेंगे आप लोगों को सेटल होने के लिए, और एक बार सेटल हो जाओगे ना बेटा वापस नहीं जाओगे, मेरे को मालूम है. मैं इधर टिक गया. ऑफ कोर्स वन जिस भी प्लेस से हम लोग आते हैं ना, वहां पे इतनी फैसिलिटी नहीं होती जितनी हमारे पास पूना में. फैसिलिटीज डज नॉट मीन कि अपने को रंगरलियां करने के लिए फैसिलिटीज चाहिए. फैसिलिटीज मीन्स आपको आधी रात को 2 बजे भूख लग रही है, भाई झेप्टो है, ढंजो है, अवेलेबल है सर्विसेज, वो आके सर्विस देके जाते हैं. वो वहां पे गांव में तो बंदा सोचता भी नहीं है झेप्टो ढंजो ये क्या होता है. अब उस दिन मेरे पापा से बात चल रही थी तो कहते हैं वो तेरा टिफिन विफिन में वो बंदा नहीं आया 3-4 दिन से, कैसे आ रहा है ना, डंजो कर रही है. डंजो ये क्या होता है. ये नया करता है, कुरियर है हमारा, लोकल कुरियर. तो एनी विच वेज बहुत सारी ऐसी फैसिलिटी, घूमने फिरने की फैसिलिटीज. अब जैसे कल संडे है, तुमको छुट्टी है, कल संडे है, तुमको छुट्टी है, खुश हो. हाँ तुमको खुश होना चाहिए क्योंकि 2 ही संडे और मिलने वाले हैं ऐसे. हाँ बस हो गई. यू आर डूइंग ये नो, क्योंकि बाद में ऐसी ना सिचुएशन आए कि कोई भी ना सीए. So well, so first one we talked about was the fixed asset, that is the non-current assets. Second we talked about is the investments, and the third one that is current assets, that what you have purchased for the purpose of resale. Number one, मैं एग्जांपल क्यों दे रहा था फैशन फैक्ट्री का आपको. जिस भी कंपनी ने, जोडेक ने, जब वो गुड्स प्रोड्यूस किए थे, किस इंटेंट के साथ प्रोड्यूस किए थे? टू सेल इट इमीडिएटली और नॉट विद इन ए शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, जनरली लेस देन 1 ईयर. वर दे एबल टू सेल इट? वो 4 साल बाद फैशन फैक्ट्री में बिक रहा है, डज दैट मीन वो 4 साल का असेट हो गया? इसका मतलब वो फिक्स्ड असेट हो गया. द इंटेंट इज मोर इंपॉर्टेंट. आप बेच नहीं पाए इसलिए वो आपके पास ज्यादा समय तक रह गया, डज नॉट मीन इट बिकम्स अ फिक्स्ड असेट. आप जिस इंटेंट के साथ परचेस कर रहे हो, क्या आप आपके लॉन्ग टर्म यूज के लिए परचेस कर रहे हो, आपके बिजनेस के लिए परचेस कर रहे हो, तो फिक्स्ड असेट. क्या आप रीसेल के लिए परचेस कर रहे हो, भले लॉन्ग टर्म में सेल करोगे पर इंटेंट रीसेल का है, तो इन्वेस्टमेंट्स हो गई. और अगर क्लियर इंटेंट है विद इन ए शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम यू आर गोइंग टू रीसेल इट, देन इन दैट केस इट बिकम्स योर करंट असेट्स. मान लो मैं आज अगर रिलायंस के कोई शेयर्स खरीदता हूं, अगर मैंने आज रिलायंस के कुछ शेयर्स खरीदे हैं एंड आई एम इंटेंडिंग टू रीसेल इट विद इन अ पीरियड ऑफ नेक्स्ट 15 डेज, नेक्स्ट 20 डेज, नेक्स्ट 1 मंथ, इन दैट केस ऑल्सो आई विल कॉल दैट एज माई करंट असेट एंड नॉट द फिक्स्ड असेट. व्हाई? सॉरी, इन्वेस्टमेंट. व्हाई? इन्वेस्टमेंट्स का ओरिजिनल इंटेंट क्या है? लॉन्गर टर्म, जनरली मोर देन 1 ईयर. मैंने रिलायंस के जो शेयर्स खरीदे क्या इंटेंट के साथ खरीदे? जैसे इसका प्राइस 5% बढ़ेगा, 7% बढ़ेगा, मैं इसको बेच दूंगा. तो माई इंटेंट इज शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम और नॉट. इन दैट केस इट बिकम्स अ शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट, एंड द शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट इज कॉल्ड एज अ करंट असेट. If it is a long term investment, it will be categorized into investments. If it is short term thing, it will be categorized into current assets. Or any assets which can be liquidated into cash. Any asset which can be liquidated, converted into cash into a short period of time, generally less than 1 year, will also be called as current asset. Debtors, bills receivable, cash at bank, these can be liquidated, these can be converted into cash immediately within a short period of time or not. So these all will be called as what? Current assets. Is the point right? Clear है सबके लिए? These can also be called as the liquid assets for the business, which can easily be sold
or recovered, we call those as what? Liquid assets or current assets. Am I clear on this? The last one, इस पे सब पे नोट लिखवाता हूं एक एक करके. The last one, that is fictitious asset. ये asset है ही नहीं, ये एक्चुअल में asset है ही नहीं, ये खर्च है, ये नुकसान है. But because I am not able to write off that particular expense, because I am not able to clear off that particular expense within 1 year, I am carrying it forward to the next year through my balance sheet. That's why that is becoming an asset. So technically speaking, it is not an asset, but it is carried forward. It is an expenditure which is carried forward from 1 year to another for write-off purpose. That's why it is called as a fictitious asset. जैसे अगर आप कोई कंपनी इनकॉर्पोरेट करते हो, इफ यू हैव फॉर्म्ड अ न्यू कंपनी, प्रोप्राइटरशिप कंसर्न में अगर बिजनेस स्टार्ट करना है तो मैंने आज तय किया, कल से बिजनेस स्टार्ट. इट हैपेंस एज सिंपल एज दैट. पार्टनरशिप में आज तय किया, दोनों ने मिलकर एग्रीमेंट किया, 500 के स्टैंप पेपर पे एग्रीमेंट साइन किया, डन, पार्टनरशिप चालू. कंपनी के केस में ऐसा नहीं होता. कंपनी के केस में फर्स्ट यू गो फॉर द नेम अप्रूवल. सबसे पहले आप आरओसी के पास जाओ, रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी हु वर्क्स अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स, उनके पास जाओ, उनसे सबसे पहले नाम का अप्रूवल लो कि आप किस नाम से कंपनी चलाना चाहते हो. क्यों? व्हेन इट कम्स टू प्रोप्राइटरशिप कंसर्न, रमेश ट्रेडिंग कंपनी नाम की कोई ऑर्गेनाइजेशन, कोई पर्टिकुलर शॉप, ऐसे तुमको 50 मिल जाएंगे पुणे सिटी में, पर वो 50 के 50 सेपरेटली आइडेंटिफाई हो सकते हैं क्योंकि उनका मालक अलग अलग है, उनका प्रोप्राइटर अलग अलग है. अगर सपोज मैं अगर कल को कंपनी चालू करना चाहूं, मैं जूस की कंपनी बनाना चाहता हूं एंड आई स्टार्ट इट इन द नेम ऑफ गोदरेज रियल, व्हाट विल हैपन? पीपल विल गेट कंफ्यूज्ड और नॉट? कौन सा वाला गोदरेज रियल रियल है? यस और नो? And for that purpose, when it comes to a company, being an artificial person has to be known with the separate identity. और इसीलिए हमें देश भर में कहीं पे भी अगर कंपनी इनकॉर्पोरेट करनी हो तो सबसे पहले उसका नाम अप्रूवल लेना जरूरी है. नाम अप्रूवल लेने के बाद में भी नाम मिल गया मतलब आज से कंपनी चालू, ऐसा नहीं है. इट्स एन आर्टिफिशियल पर्सन और नॉट. So it has to have a separate existence, separate incorporation, and that incorporation is done under the Companies Act of 2013. अब ये incorporation करने के लिए आप वापस आरओसी के पास जाते हो, तो हमको इस नाम से दुकान चलानी है तो हमारी दुकान को अप्रूवल दो. तो ये जो नाम अप्रूवल के लिए जब हम जाते हैं तो आरओसी कहता है पहले डॉक्यूमेंट दो. भाई कौन से डॉक्यूमेंट? 2 प्राइमरी डॉक्यूमेंट्स कॉल्ड एज MOA, Memorandum of Association, and AOA, that is Articles of Association. Memorandum of Association is the basic charter of that company, basic document of that company, which will provide in which name that company will work, कौन सी जगह पे ये कंपनी काम करेगी, इसका कैपिटल कितना होगा, इसकी लाइबिलिटी लिमिटेड होगी या अनलिमिटेड होगी, इसके पास कितने शेयर होल्डर्स होंगे, इसका ऑथराइज्ड कैपिटल कितना होगा और इसके प्रमोटर्स कौन है. ऐसे 6 क्लॉजेस में वो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन ड्राफ्ट किया जाता है. और उसी तरह से यू हैव टू ड्राफ्ट द आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन व्हिच प्रोवाइड्स द रूल्स एंड रेगुलेशंस अंडर व्हिच इट विल वर्क. कि इसकी मैनेजमेंट की हायरार्की कैसे होगी, टॉप बॉस को क्या कहेंगे, उसके अंडर जो लोग काम करेंगे उसको क्या कहेंगे, उसके अंडर जो लोग काम करेंगे उनको क्या कहेंगे, उनकी अथॉरिटीज क्या, कंपनी के ऑब्जेक्ट्स क्या है, वो ऑब्जेक्ट क्लॉज में आ जाएगा इन द मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन. भाई ये कंपनी बनाई क्यों तुमने, क्या काम करेगी, और जो काम तुमने बताया वही काम करना अलाउड है, उसके अलावा कोई काम करना अलाउड नहीं है एज पर द मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन. तो ये सारी चीजें आपको सबमिट करनी होती है. अब ये सारी चीजें, मैंने नाम का अप्रूवल लिया, मैंने मेमोरेंडम बनाया, आर्टिकल बनाया, वापस रजिस्ट्रेशन करने गया, ये सारा फ्री फोकट में नहीं होता है. अगेंस्ट दैट यू हैव टू पे द फीस, you have to pay the charges, consultancy to the different people or not. And this all thing, whatever expense that we are incurring is primarily to bring the company into existence or not. तो इन सारे खर्चे को हम लोग कहते हैं preliminary expense. An expense which is incurred for making or bringing the company into existence is called as
प्रिलिमिनरी एक्सपेंस। तो ये सारे जो प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस हमारे हो रहे हैं, these all preliminary expenses cannot be written off in one single financial year. Income Tax Act do not allow it. Earlier the Income Tax Act of 1961, अब जो नया इनकम टैक्स बिल आ रहा है, इनकम टैक्स एक्ट आ रहा है नया, दैट इज ऑफ 2025. In that Income Tax Act, it is not allowed to be written off in a single financial year. सेक्शन 35 DD के तहत हमको इसको राइट ऑफ करने के लिए 5 इंस्टॉलमेंट्स लगते हैं। मतलब मैं एक साल में सिर्फ 1/5 राइट ऑफ कर पाऊंगा या नहीं? है तो मेरा खर्चा ना। टेक्निकली स्पीकिंग, सपोज मैंने कंपनी को इनकॉर्पोरेट करने तक के 1 करोड़ रुपए का खर्च किया, बड़ी कंपनी है कोई, 1 करोड़ रुपए का खर्च किया, ये 1 करोड़ रुपया है तो प्रिलिमिनरी एक्सपेंस, है तो खर्च ही, इसके अगेंस्ट सिर्फ कंपनी ही एग्जिस्टेंस में आई है या नहीं? बट आई कैन नॉट राइट ऑफ दैट 1 करोड़ रुपीज राइट अवे इन द फर्स्ट ईयर ऑफ द कंपनी इटसेल्फ. So what I do, I write off only 20 lakh rupees what is allowed to me. 20 lakh rupees मैंने P&L को डेबिट कर दिए, बाकी 80 लाख कहां करूं? The remaining 80 lakh is shown into the balance sheet as an asset. But क्या वो हमारी asset है? Actual में वो हमारे लिए खर्च है. But it is shown in the balance sheet. That's why we call that as your asset. But that asset is called as a fictitious asset. So very simple terms, an expense which cannot be written off in a single financial year and carried forward from one year to another through the balance sheet is called as fictitious asset. Is it clear for everyone? अब जहां तक नॉन करंट असेट्स की बात है, फिक्स्ड असेट्स की बात है, those are further divided into 2 parts. What 2 parts? Tangible fixed assets and intangible fixed assets. What is tangible fixed asset? Something which I can see, table I can see, what I can touch, और चलते फिरते अगर लग गया तो I can feel also. That is why these are called as tangible fixed assets. But there are certain intangible fixed assets, intangible non-current assets. What those are? I cannot see it, I cannot touch it, but I can only feel it. Such kind of assets we call as the intangible assets. One of the best example, of course, you all know. कितने होशियार बच्चे हो ना, ऐसे चलते फिरते गुडविल बनाते हो तुम, राइट? सर गुडविल तो बहुत बनाएंगे, रुको आप, क्लास का बच्चा बच्चा पहचानेगा अपने को, भले वो माइनस में हो पर गुडविल बहुत बनाएंगे. ICI registration last date for September 2025 for CA Foundation. क्या बताया था मैंने? 30 अप्रैल. 30th April of 2025 is the last date for registration, right? हाँ, so intangible assets are goodwill, patents, copyrights, trademarks, technical know-how. These all are called as the intangible assets. Whereas tangible, I need not give you the explanation. Land, building, machinery, फर्नीचर, फिक्सचर्स. अच्छा, फर्नीचर फिक्सचर में क्या फर्क होता है? सब लोग इंतजार कर रहे थे कि मास्टर तब से पढ़ाया जा रहा है, अब तक एक भी सवाल नहीं पूछा हमसे. हाँ, ये फर्नीचर है. वाई? So these electric lightings are fixtures because those are fixed at a place. Any asset which is fixed at a place, which is not moved from one place to another, generally is fixture. Something that can be moved from one place to another readily, that is nothing but what we call as furniture, right? कई बार हम लोग वो हमारे घरों में wardrobes बनते हैं. If those wardrobes are fixed to the wall, then in that case those will be called as fixture. है तो फर्नीचर का हिस्सा, but those will be called as what? Fixtures. But कुछ टेबल वगैरह होते हैं, कुछ चीजें होती है हम लोग जो एक जगह से दूसरी जगह मूव करते रहते हैं, those will be called as furniture. है दोनों का नेचर सेम. Difference is what? One is not fixed to the land mass and second is fixed to the land mass. That is the basic difference between the two. Is that point right? Plant and machinery, ऐसा कुछ तो बोलते हैं हम लोग. Plant and machinery.
Is there a difference between plant and machinery, or it's one and the same thing? Yes. पार्ले एग्रो लिमिटेड जैसी कंपनी के पास प्लांट एंड मशीनरी होती है, पर रिलायंस इंडस्ट्रीज के पास सिर्फ मशीनरी होती है. इज दैट सो? पार्ले एग्रो लिमिटेड सुना है नाम कंपनी का? भाई क्या बनाती है? ए बिस्किट वाली नहीं है वो. पार्ले एग्रो लिमिटेड ये फ्रूटी वाली है. मैंगो जूसी. हाँ, मैंगो फ्रूटी फ्रेश एंड जूसी. दैट इज व्हाट इज पार्ले एग्रो लिमिटेड. वो जो सॉफ्ट ड्रिंक्स बनाने वाली कंपनी है, दैट इज पार्ले एग्रो लिमिटेड, बिकॉज दैट इज एग्रो बेस्ड कंपनी. वेरएज ये पार्ले एफएमसीजी वाली कंपनी का नाम अलग है, पार्ले प्रोडक्ट्स लिमिटेड है वो. So there is a difference between the two. हाँ, बोलो बोलो. What is the difference between plant and machinery? नहीं नहीं भाई, कंप्यूटर लैपटॉप इज अ डिफरेंट कैटेगरी ऑल टुगेदर. नहीं नहीं. ओके. फ्रॉम मंडे वेयर टू ज्वाइन द ऑनलाइन क्लास? जहां बैठा है वहीं से ज्वाइन करेगा ना. डोर हैंडल इज फिक्सचर, टेबल इज फर्नीचर. अच्छा, डोर फिक्सचर नहीं है, डोर हैंडल इज फिक्सचर. बड़ी मुश्किल से हैंडल करते हो कि तेरे लोग, तेरे घर वाले. तू किसी डोर पे नहीं लगेगा लग रहा है मेरे को. ऐसा हैंडल है ना बेटा. फ्रॉम मंडे फॉर द ऑनलाइन सेशंस द इंस्ट्रक्शंस विल कम, प्रोवाइडेड यू हैव टेकन द एडमिशन. हाउ टू ज्वाइन एंड वेयर टू ज्वाइन एंड ऑल दैट, ऑल द इंफॉर्मेशन विल कम. अच्छा, जितने लोग ऑफलाइन आ रहे हैं ना, मैं आप लोगों से ऑनेस्टी के साथ, सिंसियरिटी के साथ दरख्वास्त करता हूं. आई एम नॉट गिविंग यू द इंस्ट्रक्शन, आई एम रिक्वेस्टिंग यू. Come what may the situation be, unless and until it is the extreme emergent medical situation, keep attending the face-to-face lectures only. क्योंकि ऑप्शन है नहीं यार, सुबह 8 बजे कौन आएगा इतना जल्दी लेक्चर को, चलो पहला लेक्चर ऑनलाइन करेंगे, बाद में अपने नहा धो के जाएंगे. किसको मालूम पड़ने वाला है यहाँ पे कि तुम नहा धो के आए कि नहीं? ड्राई क्लीनिंग इज द बेस्ट थिंग दीज डेज, यू नो. सुबह उठने का, मुंह हाथ धोने का, एकदम उसका रेडी. नो वन कैन रियलाइज. बाजू वाला वो सुगंध से बेहोश हो जाए, इतनी लगा क्या हो, राइट. मतलब दुर्गंध की इतनी कड़ी परत लगा दो दुर्गंध के आगे कि खुद को भी महसूस ना हो कि अपने से दुर्गंध आ रही है, राइट. हाँ, ऐसे मतलब मजाक उड़ा रहे हो. क्योंकि क्या है पता है क्या, तुम लोग की जनरेशन में ना 5 मिनट के काम के लिए भी तुम लोगों को ऐसा फीलिंग आता है ये क्यों करें हम. नहाना ये 5 मिनट का काम होता है, बट सिर्फ नहीं, ठीक है लड़कियों को भी ड्यू रिस्पेक्ट. हाँ, इनको पहले अपना मन बनाने के लिए टाइम लग जाता है. 10 मिनट तक तो ये मन बनाती हैं पहले कि अभी नहाना है, और उसके बाद की तो कहानी छोड़ दो. तो सर मेरे सेमेस्टर के पेपर हैं, तब तक तो ऑनलाइन ही करना पड़ेगा. हाँ ठीक है, कोई दिक्कत नहीं बेटा. व्हाट आई एम सेइंग इज, इफ यू आर द स्टूडेंट ऑफ फेस टू फेस बैच, try to be into the class in all the circumstances possible. मैं ये क्यों कैटेगरिकली मेंशन कर रहा हूं, आने वाले समय में तुम्हारी एग्जाम आने तक there are 3 different circumstances going to come. Number 1, the very first, and that is the rainy season. That is going to be part and parcel of your lectures. मैं तो कार में आऊंगा, मेरे को तो पैसे मिले ना, मेरे को पढ़ाने आना पड़ेगा ना. पर तुम लोग जैसे भी पहुंचो, पर पहुंचो. दैट्स नंबर 1. नंबर 2, बिफोर योर एग्जाम बापा विल अराइव.
गणपति बापा विल बी अराइविंग ना 27 अगस्त, और गणपति बापा जब जाएंगे उसके बाद तुम्हारी एग्जाम है। तो अगर तुम बापा के साथ बिजी हो गए तो दिक्कत हो सकती है, राइट? प्लीज टेक केयर ऑफ दीज काइंड ऑफ फैक्टर्स। व्हाई आई एम कैटेगरिकली मेंशनिंग दीज ऑल थिंग्स, ये बहुत ही फालतू पांचट चीजें हैं, बट इन फालतू पांचट चीजों से, छोटी छोटी चीजों से आपकी पढ़ाई पे बहुत बड़ा बड़ा असर होता है। यहां कितने लोग वो ढोल वाले हैं, स्पेशली जो पुनाइट होते हैं, इनकी तो मतलब वो कैटेगरी होती है। एक ढोल वाले कितने, 1 2 3 4 5, अगले 4 साल तक नहीं जाओगे, राइट? कम से कम 2 तो साल फिक्स है, ये साल और अगला साल इंटरमीडिएट तक, उसके बाद नहीं तो आईसीआई तुम्हारा बजाएगी, फिर सोचना मत। यू डिसाइड कि तुमको ढोल बजाना है या आईसीआई से बजवाना है, राइट? खैर, तो ऐसी छोटी छोटी चीजें बहुत सारी आती रहेगी मेरी तरफ से, क्योंकि ये प्रैक्टिकल एक्सपीरियंसेस है। ये सारी चीजें जो मैं आपके सामने बात कर रहा हूं मेरे प्रैक्टिकल एक्सपीरियंसेस है। इनिशियली ऐसी भीड़ दिखती है हमेशा, इसी तरह से, जिस तरह से तुम लोग बैठे हो ना, एक्साइटेड विद द इंटरेस्ट, क्योंकि इतनी बेसिक चीज चल रही होती है ना इनिशियली, उसमें से कई सारी चीजें हमने ऑलरेडी देख रखी होती है। कोई सा भी सब्जेक्ट ले लो, एक्सेप्टिंग लॉ, आप कोई सा भी सब्जेक्ट देख लो, हर सब्जेक्ट में कुछ ना कुछ देखा हुआ पहले। इकोनॉमिक्स पढ़ा हुआ है, मैथ्स आता है, अकाउंट्स ठीक है, ये तो क्या फालतू पढ़ा रहा है मास्टर, क्यों पढ़ा रहा है पता नहीं, दैट काइंड ऑफ थिंग। अभी जब सवाल पूछ रहा हूं प्लांट और मशीनरी में फर्क क्या है वो नहीं बता पा रहे, पर फालतू पढ़ा रहा है मास्टर, दैट काइंड ऑफ थिंग। तो ऑल सेड एंड डन, व्हाट आई एम ट्राइंग टू हाईलाइट अपॉन इज, आप अपने लिए यहां पे आए हो तो वो चीज को आप भूलो मत। भले ही आप पेरेंट्स के फोर्स से आए हो, या किसी को देख के आए हो, या फिर ऐसा लगने लगा कि वो अगर सीए कर सकता है तो मैं क्यों नहीं कर सकता। है बेटा, मेरे पास टाइम, देखते रहता हूं मैं, है। वो क्या है ना, मेरे को वरदान मिला हुआ है, बंदे का ध्यान घड़ी पे, मेरा ध्यान बंदे पे। तो हाँ, वो दिखा मेरे को, इसलिए वरदान है ना, क्या करूं, अपने आप ध्यान जाता है मेरा। इतना बोर कर रहा हूं मैं। फिर परसों का क्या था तू, कहाँ के डेमो अटेंड कर रहा था तू? अच्छा हाँ, फिर ठीक है, मुझे लगा और कहीं के डेमो अटेंड कर रहा था तू। ठीक है, एनीवेज, हेड डाउन, देखो देखो कंसेप्ट देखो। फिक्स्ड एसेट्स, और ये चीजें आपको रेगुलरली एक्सपीरियंस होगी। मुझे ना वो चेहरे ऐसे स्कैन किए हुए रहते हैं मेरे, स्कैन करता हूं मैं, मेरे को समझ में आता है कि आज कौन है क्लास में और कौन नहीं है, राइट? तुम पक्का रहोगे ना? ठीक है, ध्यान से, ज्यादा मत पकना, लोग खा जाएंगे। पक्का तो खा लेते हैं ना लोग। यस, डाउन, फिक्स एसेट, an asset acquired or constructed, an asset acquired or constructed with the intention of use within the business used within the business over a longer period of time, over a longer period of time, in the process of production, comma, manufacturing or provision of services, manufacturing or provision of services, provision of services.
Under the investments, write down. These are the securities and shares or any other assets, securities or shares or any other assets purchased with an intent to resale after certain period of time, generally more than a year. Generally more than a year. Next, उसी के नीचे लिखो, these assets are expected to generate the regular returns. These assets are expected to generate the regular returns. इन्वेस्टमेंट्स के नीचे ही लिख रहे हैं सेकेंड पैराग्राफ. These assets are expected to generate the regular returns or appreciation in its value. Or appreciation in its value. सर क्या आप रैंक आए थे क्या सीए में? नहीं, never. CA foundation I got 236. CA intermediate I got 300 with the set off of 12 marks. 150, 162 and 138 were my marks. And CA final first group I got 200, second group I got 200. CA final I took 4 attempts. My handwriting was my best friend, जिस वजह से मुझे इतने सारे अटेम्प्ट देखने पड़े फाइनल में. फर्स्ट अटेम्प्ट आई गॉट 62 marks in accounts. Account was exempt and I had to appear for both the groups again when my total was 183, 186, 187. इंडिविजुअली दोनों ग्रुप में सब्जेक्ट में पास था मैं, बट एग्रीगेट आई कुडंट. second attempt I cleared first group, but in the second group I got 193 marks. Again clear in all the subjects, but total was 193. Third attempt I got 198 marks. And in the last, and coincidentally before the third attempt's result I got married. And I had to appear for my fourth attempt after my marriage. And then I got 200 marks. Lady luck, you know. So anyways, content was never a problem for me. और ये कई सारे लोगों के साथ में होता है. Content is never the problem. मतलब उस समय especially when I was in my that third or fourth attempt at that time, एक सिंघानिया नाम का एक बुक आता था टैक्सेशन के लिए. टैक्समैन का एक बुक आता है सिंघानिया नाम का, कुछ 1500-1600 पन्ने का. वो बुक में कौन से पेज पे, कौन सी जगह पे, कौन सा वाला कंसेप्ट लिखा हुआ है, ये मेरे को याद था. लाइक दैट. इफ अ पर्सन वुड आस्क मी कि टैक्सेशन का ये प्रोविजन वो 43AB पढ़ा है क्या, 43B पढ़ा है क्या, आई वुड जस्ट गिव द आंसर लाइक दिस विद द रूल 6DD ऑफ दैट. मतलब इतना क्लियरली और कौन से पन्ने पे किस सीक्वेंस में लिखा हुआ है वो भी याद होता था. रट्टा नहीं मारा था, पर वो याद उतना स्ट्रांग हो गया था, पढ़ाई इतना बार था ना. तो इट वॉज द कंटेंट वॉज नेवर अ प्रॉब्लम फॉर मी.
फॉर मी द मेजर प्रॉब्लम वॉज माई प्रेजेंटेशन विच वॉज अल्ट्रा बैड. आज की तारीख में जिस तरह का मेरा प्रेजेंटेशन है दैट इज वेरी डिफरेंट. और दूसरा मेरा सबसे बड़ा प्रॉब्लम था मेरा हैंड राइटिंग. थ्योरी सब्जेक्ट्स आई कुडंट स्कोर द मार्क्स ओनली बिकॉज ऑफ माई हैंड राइटिंग. तो अगर सपोज मेरी हैंड राइटिंग अच्छी होती तो सेकंड अटेम्प्ट भी नहीं लगता. पर ठीक है, सीए बनना इज मोर इंपॉर्टेंट. पर एक सच बात बताऊं, उस समय पे ना डायनामिज्म चलता था, ये पर्टिकुलर चीज चलती थी. क्योंकि मैं जब सीए फाइनल में पहली बार फेल हुआ था ना, उस समय पे एक टी स्टॉल है, वहाँ पे गए थे हम लोग. मतलब जनरली वहाँ पे हमारा अड्डा बनता था. तो वहाँ चला गया मैं कि मुंह लटकाए हुए फेल हो गया था. तो वहाँ एक सीनियर था. वो सीनियर कहता है क्या हुआ मनीष? कुछ नहीं भैया, पूछो मत. अरे बताया यार क्या हुआ, क्या दिक्कत है? गड़बड़ हो गई, रिजल्ट नहीं आया, फेल हो गया. हाँ ना भैया, आप समझ लो ना, कल ही रिजल्ट आया, फेल हो गया हूँ. तो इतनी चिंता क्यों कर रहे हैं? मतलब भैया आपको समझ रहा है, फेल हो गया हूँ, फेल फेल काइंड ऑफ फर्स्ट टाइम इन योर लाइफ ना. और जब ऐसा बोल दिया फेल हो गया हूँ फेल, तो उस समय पे इतना क्या चिंता कर रहे हैं, ये देख 4 अटेम्प्ट. मेरा तो कॉलर ही टाइट हो गया, अपना तो पहले ही है. तो उस समय पे ना ये सारी चीजें चलती थी. क्यों पता है? उस समय पे एक चार्टर्ड अकाउंटेंट गोइंग इनटू एम्प्लॉयमेंट वुड बी जनरेटिंग द रेवेन्यू हार्डली. आई एम टॉकिंग अबाउट द स्टोरी ऑफ 2002. उस समय पे कोई सीए अगर जॉब में से जाता था तो उसको हार्डली साल का 1.5 से 2 लाख रुपए मिलता था. 15,000 से 20,000 रुपए का मैक्सिमम सैलरी इज व्हाट दे यूज टू गेट. 20,000 रुपीज पर मंथ. आज की तारीख में वही चार्टर्ड अकाउंटेंट को या सीए स्टूडेंट को आर्टिकलशिप में 15,000 रुपये मिलता है स्टाइपेंड के तौर पे. आज की तारीख में अगर कोई सीए बन जाता है तो उसको जो प्री प्लेसमेंट ऑफर आते हैं ना, कि तुम्हारा सीए का एग्जाम दिया और तुम्हारी फर्म तुमको ही उठाने के लिए तैयार है, दे गिव यू द ऑफर डायरेक्टली ऑफ 12 and 14 लाख रुपीज पर एनम. मतलब एक सवा लाख रुपया महीने का पगार है. तो दैट काइंड ऑफ डायनामिज्म वाज नॉट देयर अर्लियर. मैंने कई सारे लोग देखे हुए हैं, अलग अलग वैरायटी के लोग देखे हुए हैं. मैं व्हेन आई वाज एट द एज ऑफ 22 and a half, आई वाज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट. आई हैव सीन अ पर्सन हु बिकेम चार्टर्ड अकाउंटेंट इन 22 ईयर्स. मेरी उम्र के 22 साल, उसका सीए लाइफ 22 साल. ही वॉज एट द एज ऑफ 43 ही बिकेम चार्टर्ड अकाउंटेंट. 22 साल तक के बंदे ने मेहनत की सीए बनने की. तो ऐसे इंस्टेंसेस पहले बहुत होते थे, आजकल नहीं होते, आजकल मिलेंगे भी नहीं और मिलना भी नहीं चाहिए. बिकॉज वी आर लिविंग इन क्वाइट अ डिफरेंट वर्ल्ड ऑल टुगेदर नाउ डेज, राइट? तो भाई फर्क नहीं पड़ता है. क्यों पता है? मेरा बेटा रैंक आया था. सो हाँ, मतलब वो एकदम ऐसा प्राउड फील होता है. अपन तो कभी जिंदगी में नहीं आए. ही केम इन टू द रैंक फॉर लास्ट सीए इंटरमीडिएट में. जब वो पास हुआ था, ही गॉट 48th रैंक ऑल इंडिया एंड ही गॉट फेल्ड इन द फर्स्ट अटेम्प्ट. फर्स्ट अटेम्प्ट में भाई साहब फेल हुए थे. एंड व्हेन ही अपीयर्ड फॉर द सेकंड अटेम्प्ट ही हैड द गैप ऑफ ओनली 2 months. क्योंकि मई में एग्जाम लिखी थी, जुलाई में रिजल्ट आया था, वापस सितंबर में एग्जाम लगी थी. दिस वाज द फर्स्ट ईयर. लास्ट ईयर जो था वो पहला साल था जब 3 अटेम्प्ट लगे थे. तो ही गॉट द अटेम्प्ट इन सितंबर अगेन. मैंने उससे पूछा भाई तेरे को सितंबर नहीं देनी तो जनवरी दे दे, बट ही सेड नो, आई विल गिव सितंबर. एंड ही प्रिपेयर्ड होल थिंग्स इन 2 months. एंड इन 2 months ही अपीयर्ड फॉर द एग्जाम, गेव द एग्जाम. और हर एग्जाम के दिन हम लोग जब जाते थे ना, मतलब मैं उनको उसको लगभग छोड़ने जाता था, हर दिन मुझे बोलता था पिछले अटेम्प्ट में ये पढ़ लिया होता ना तो आज इधर नहीं बैठा होता मैं. अपने आप को रियलाइजेशन आ जाता है कि अपन कहाँ चुके थे, कहाँ नहीं चुके थे, राइट? सो दीज ऑल थिंग्स कीप हैपनिंग, डोंट वरी एट ऑल. 10th का पास का रिजल्ट एंड सीए का फेल का रिजल्ट अप्रोक्सीमेटली इक्वल होता है. तेरा कहने का तात्पर्य है कि अपन 10th पास हुए ही क्यों? ना 10th पास होते ना इतनी मेहनत करनी पड़ती जिंदगी में. अपन भी पुष्पा 2 बन जाते, नहीं? हायर पावर. बोलो प्लांट एंड मशीनरी का डिफरेंस छोड़ो. द डिफरेंस बिटवीन प्लांट एंड मशीनरी, वहां से कहानी स्टार्ट हुई थी, वो बताया था. प्लांट एंड मशीनरी पीछे छोड़ के चले गए अपन. ओ माय गॉड, कहां तक लिखा आपने? इन्वेस्टमेंट्स लिख लिया ना आपने? हाँ चलो चलो, आप बताओ प्लांट एंड मशीनरी का डिफरेंस बताओ, बाद में वापस जाऊंगा करंट एसेट पे. व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन प्लांट एंड मशीनरी? छूट गया मेरे से, सॉरी. हाँ बट बेटा ऐसे कुर्सी उठा के मारूंगा तेरे को मैं. प्लांट परमानेंट होते हैं, मशीनरी ऐसे टेम्पररी होते हैं, मैकेनिकल होते हैं.
जब मैंने एक बार बोल दिया दीज आर फिक्स्ड एसेट, तो परमानेंट और टेम्पररी में क्या होता है? फिक्स्ड इज लॉन्ग टर्म ना। मजाक किया, नहीं मारूंगा मैं तो कुर्सी, तू चिंता मत कर, टेंशन में आ गया बता एकदम। नहीं, नहीं ना, हाँ गुड। हाँ भाई, अच्छा, सेट ऑफ मशीनरी इज प्लांट, सिंगल मशीनरी मशीनरी। तो हमारा एक सप्लायर है, वो रेडीमेड गारमेंट मैन्युफैक्चर करके हमको देता है, तो उसके पास अगर 10 मशीन पड़ी है तो वो प्लांट हो जाएगा। हाँ, होता होगा। हाँ जी, अच्छा, जहां से पूरा प्रोडक्ट बन के सप्लाई होता है वो प्लांट बोलते हैं, नहीं तो नहीं। जैसे फॉर एग्जांपल टाटा मोटर्स का एक एंसिलरी यूनिट है, एक मिनट, टाटा मोटर का एक एंसिलरी यूनिट है, वो उसको कास्टिंग्स बना के भेजता है। कास्टिंग्स मतलब वो जो दरवाजे होते हैं ना, दरवाजे का जो अंदर अंदर का फिटिंग होता है, वो सिर्फ उतना फिटिंग बना के भेजता है। तो उसका जो फैक्ट्री है वो प्लांट होगा, उसके पास जो मशीनरी है वो की मशीनरी होगी। क्या प्लांट या मशीनरी है? यस, क्या प्लांट होगा? क्यों? बट वो तो कार का एक पार्ट है ना। हाँ, इधर से आवाज आई थी। हाँ, ओके, प्लांट इज द इंफ्रास्ट्रक्चर, मशीनरी इज व्हाट वी इंस्टॉल इन दैट। ओके, फैक्ट्री इज प्लांट। ओके, वर्क प्लेस और द डिजाइन इज द प्लांट। फाइन। हाँ, वही तो उसने बोला ना, व्हेन मल्टीपल मशीन्स आर पुट टुगेदर दैट बिकम्स द प्लांट। अच्छा, ह्यूज रहेगी तो प्लांट, छोटी छोटी मशीन रहेगी तो नहीं। आई एम आस्किंग, कैसा है फिर बताना। When the group of machineries are used together to produce a particular product is what we call as plant. But when those are independently used, maybe for the different products, maybe for the common product, but those are differently used, those are called as machinery, right? That's the basic difference. जब अब आप सपोज वो बजाज ऑटो का एग्जांपल ले लो। बजाज ऑटो में अगर कोई बाइक बन रही है, कोई बाइक वो प्रोड्यूस कर रहे हैं, तो दे इट्स नॉट द काइंड ऑफ थिंग कि एक बंदा लेबरर वो बैठता है, पहला वो फ्रेम रखता है, फिर उसके ऊपर वो उसका पेट्रोल का टैंक लगता है, फिर उसके ऊपर मशीनरी रखता है, फिर उसका सीट रखता है, फिर उसके ऊपर हेडलाइट रखता है। इट डजंट हैपन लाइक दैट। इट इज एन असेंबली लाइन अंडर विच इट वर्क्स। वो एक हैंगर पे वो बेसिक फ्रेम लगा दिया जाता है, और उसके बाद एक एक करके रोबोटिक्स एंड मैनुअल तरीके से वो सारे प्रोडक्ट उसको जोड़ते जाते हैं। तो दीज ऑल रोबोट्स, these all machineries are working together to produce that single product or not. For that purpose, that will be called as a plant. But when the machineries are used independently, then in that case those are called as machinery. Technically speaking, difference hai. Practically, plant and machinery for us one and the same thing. Is the point right? Clear hai? Plant cannot move and machinery can move. Of course, when all the machinery installed together are dismantled and shifted, even the plant can be moved. There are the scenarios that I have seen. Like टाटा मोटर्स का अगर वापस से एग्जांपल लें, तो टाटा मोटर्स का जो वो नैनो, वो छोटी सी गाड़ी आई थी उनकी, वो रिक्शा का अपग्रेडेड वर्जन, वो जब इन्होंने बनाया था, दैट वाज बेसिकली द ओरिजिनल प्लांट वाज इन सिंगूर, वेस्ट बंगाल। वहां फिर वो ममता दीदी आई, योनी चौलवे, और फिर इनको वहां से वो प्लांट हटाना पड़ा और वहां से उन्होंने शिफ्ट किया टू सानंद, गुजरात। तो दे रिमूव द मशीनरी फ्रॉम देयर एंड दे इंस्टॉल्ड इट बैक इनटू सानंद। So the plant can also be moved by dismantling it, not as such, but you have to dismantle those all machineries and then those can be reinstalled. So it's not the case that plant cannot be moved at all. Yes, the group of machineries when those are working together, that is generally called as a plant. Is the point right? हाँ, देखिए next, current assets. Are that an asset which is acquired with an intent to resale
or which is acquired with an intent to resell or to be used within the production process, to be used within the production process in a short period of time, in a short period of time, in a short period of time are current assets. Next point we have to write in that. It includes any receivables, it includes any receivables within the short period of time, within the short period of time. तो इसका मतलब आपकी इन्वेंट्रीज स्टॉक, whether that is the stock of raw material, whether that is the stock of finished goods, these all are nothing but current assets. Short term investments will be categorized into current assets. Even for that matter, debtors, bills receivable, cash at bank, these all will also be categorized into current assets. Am I going good for everyone? Last one, write down fictitious assets. In fact, उसके साथ साथ हमको tangible, intangible भी लिखना है. But before that, write down fictitious assets. Fictitious assets. The expenses which cannot be written off. The expenses which cannot be written off in one financial year and carried forward as such, to the subsequent year for write-off, to the subsequent year for write-off are fictitious assets. Are fictitious assets. For write-off are fictitious assets. Example, preliminary expenses, deferred, advertisement, lump sum advertisement expense, lump sum advertisement expense, एक मिनट, हाँ जी, नेक्स्ट वन राइट डाउन जी, नेक्स्ट वन राइट डाउन tangible fixed assets, tangible fixed assets, इसमें क्यों बेटा, debtors is current asset, just now I said ना, receivable in a short period of time ना, नहीं, receivables are always current assets. वो जब पे नहीं करेंगे, उनके साथ में हमने झगड़े किए, फिर बैड डेट्स वगैरह वगैरह, वो बात की बात, राइट. हाल फिलहाल उम्मीद नहीं छोड़नी है, पैसा आएगा, ठीक है ना. हाँ,
मतलब हमने जिस टाइम पे गुड्स बेचे उसी समय पे सोच लिया अगर नहीं आया तो नुकसान डायरेक्ट, नो. Tangible fixed assets, the assets which can be seen or touched and having the physical existence are the tangible assets, and have the physical existence are the tangible assets. Example, land and building, plant and machinery, furniture, computer, vehicle. These all are tangible assets. Next one, write down. Intangible fixed assets. Intangible fixed assets. An asset owned by the business, but cannot be seen or touched, as it does not have a physical existence, is an intangible asset. ये ऑनलाइन वालों को ऐसे अलग लेवल की पंचायत क्यों होती है? सर आप रैंक आए थे क्या? सर एट व्हाट एज यू गॉट मैरिड? What difference does it going to make? Any kind of difference it is going to make in your life? At what time I got married? कमाल है. हाँ, it made my life whole different, because when I got married at the age of that 22 and a half, today I am quite comfortable, because at the age of 44 I have got my son who is at the age of 20, right? So I am very comfortable now. मतलब कैसा है ना कि बुढ़ापे में सहारा देने के लिए बंदा है. खैर लिखो क्या पूछते हैं पता नहीं यार, सच में मतलब what difference does it make? Seriously, if at all a person is asking something like that, are you trying to plan for some kind of thing like that? कि नहीं मैं भी ये एज तक के सीए बनेगा फिर ये एज पे शादी करेगा. Is it the kind of thing? पागल. Examples: goodwill, patents. What is patent? क्या होता है? जब अपन कैंप साइट में जाके रहते हैं फिर वो टेंट का पैसा देना पड़ता है, दैट इज पेटेंट. Isn't it? उधर टेंट पे ही रहना पड़ता है ना कैंप साइट में तो. हाँ, व्हाट इज पेटेंट? हाँ मैडम. रजिस्टर्ड ब्रांड्स. तो ट्रेडमार्क क्या होता है फिर? ट्रेडमार्क इज अ रजिस्टर्ड ब्रांड. कॉपीराइट इज डिफरेंट. हाँ, कॉपीराइट एंड पेटेंट इज डिफरेंट. कितनी हवा खाएगा बेटा, कितना पैसा वसूल करेगा तू? हाँ, व्हाट इज पेटेंट? If anyone can give the answer. Now I hope you have got yourselves comfortable at Ekatvam. All comfortable है ना? हाँ, मतलब कैसा है ना कि अब मंडे से तो सारा बंद हो जाना है ना, डेमो मेमो सब अपने बच्चे हैं फिर. अब तक के तो रोज डाउट होता है.
ये बंदा कल रहेगा या नहीं. Prove that you are the inventor, and only you have the right to market your invention. Okay. You will also get married with before the final attempt. बेटा लेडी लक ना हर किसी की लाइफ में काम नहीं करता है. कई लोगों की लाइफ में उल्टा चला है. You decide accordingly. हाँ. India's youngest CA is of 19 years. How can we become CA at the age of 19? For that, you are a bit late. Because you are already 19, 17, na? 18. You are already 18. So, एक साल में तो अब चांस ही नहीं है. Right? Basically, there is a category called as हाँ हाँ. ऐसा क्या पढ़ा है मैंने जो इसको कैलकुलेटर की जरूरत पड़ गई. अभी जाके लेके आया तू लेक्चर के बीच में. हाँ लेक्चर में ये भी आया है. अच्छा तो कैलकुलेटर इतना दूर से लेके आया तू. देयर इज अ कंसेप्ट कॉल्ड एज चाइल्ड प्रोडिजी. ये क्या होते हैं कि आप 5th स्टैंडर्ड में रहते समय 8th की एग्जाम्स लिख रहे हो. 6th स्टैंडर्ड में जब आपने होना चाहिए तब आप 10th स्टैंडर्ड की एग्जाम्स लिख रहे हो. जब आपने 8th स्टैंडर्ड में होना चाहिए तब आप 12th की एग्जाम्स लिख रहे हो. मतलब you have completed your pre-education before the age you were expected to do that. And in that, because you are a child prodigy, so you get the admissions to the courses like CA also at the faster pace. क्योंकि CA कोर्स में एज का लिमिट नहीं है, कोर्स का लिमिट है. If your 12th appeared, you can give go for the 12th foundation exam and so on and so forth. So accordingly, they can get jump overs because of that situation, and that is why they are able to become the chartered accountant at the early age. तो थोड़ा सा बस लेट हो गया तू. हाँ. हाउ इज दैट पॉसिबल? स्कूल वालों से पूछो भाई, या फुनचुक ओंगडू से मिलो. फुनचुक हाँ वो पढ़ता था ना, कोई भी क्लास में जाके पढ़ता था. हाँ वैसा. ठीक है. लिखा आपने इंटेंजिबल फिक्स्ड एसेट. पेटेंट क्या होते हैं? द राइट ओवर एन इन्वेंशन. If you have invented something, a formulation, a design, a particular product, and you don't want that product to be copied or that formulation to be copied by someone else, you register that formulation, that invention, that patent, that particular design in your name. And once that is registered in your name, that cannot be used by anyone else without your permission. That is what we call as a patent. You cannot see a patent, you cannot touch a patent, but you can feel that right into that invention or not through that certificate. And that's why that patent is called as an intangible asset. उसी तरह से copyrights, अगर आपने कुछ लिटरेचर लिखा है, the work of literature, अगर आपने कोई बढ़िया सी बुक लिख दी एकदम चेतन भगत स्टाइल, and if you want कि इस पे 3 इडियट बने, तो आप उसको रजिस्टर कर लेते हो अपने नाम पे. ये मेरी लिखी हुई बुक है, इसको कोई और कॉपी नहीं कर सकता है विदाउट माय परमिशन. इन दैट केस दैट पर्टिकुलर वर्क ऑफ आर्ट और वर्क ऑफ क्रिएशन और वर्क ऑफ राइट अप और दैट लिटरेचर कैन नॉट बी कॉपीड बाय एनीवन एल्स अनलेस एंड अंटिल यू गिव द परमिशन, एंड सच थिंग इज व्हाट वी कॉल एज द कॉपीराइट्स. सो दिस पेटेंट्स, कॉपीराइट्स, ट्रेडमार्क्स, these all things we call as the intangible fixed assets. Is this point right? In the lecture on Monday, we'll finish with the liabilities first and directly start with the type of accounts.